ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆ 13 ਸਤੰਬਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਡੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਵੀਕਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਲਾਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। WhatsApp, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, PSCB ਕਲਰਕ, SSC, CGL, CHSL ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ। COVID-19 ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਨਿਊਜ਼, ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੈਂਕਿੰਗਸ, ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸਕੀम्स, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਵਾਰਡਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼, ਲੇਟੈਸਟ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ COVID-19 ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਟ ਪੁਣੇ ਦੁਆਰਾ, ਡਾਇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਏਅਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਮ ਫਰੈਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੈਲਦੀ ਏਅਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਮ ਫਰੈਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਡਾਇਟ ਦੁਆਰਾ। IIT ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਚੱਕਰ ਦੀ ਕੋਬ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ N95 ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਡੀਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਦੁਆਰਾ COVID-19 ਵਿਜੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਫਲੈਗਡ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। MP ਦੁਆਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ COVID-19 ਦੇ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ 564 ਨਵੇਂ ICU ਬੈਡਸ ਔਰ 3600 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਰਫਾਲ ਜੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਲਾ ਏਅਰਬੇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 36 ਰਫਾਲ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 2022। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ? ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀਗੇ, 5 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 5 ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੀ 17th ਸਕੁਐਡਰੋਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਐਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਐਸੀ ਚੌਥੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਫਾਲ ਫਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ, ਇਜਿਪਟ ਔਰ ਕਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ QR ਕੋਡ ਇਨੇਬਲਡ ਕੰਟੈਕਟਲੈਸ ਚੈੱਕ ਇਨ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ QR ਕੋਡ ਇਨੇਬਲਡ ਕੰਟੈਕਟਲੈਸ ਚੈੱਕ ਇਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਪਸ਼ੂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੁਆਰਾ, ਮਾਇਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਸ਼ੂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ, ਮਾਇਸੂਰ ਸਿਟੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਰਖਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੋਲਰ ਫਲੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ 10 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ? 10 ਗੀਗਾਵਾਟ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ? ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਉੜੀਸਾ ਦੁਆਰਾ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਲਈ E-ਪੋਰਟਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस NIT त्रिची की अगर आप गल करिए नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी त्रिची जो कि तमिलनाडु के विच है, इत्थे नवा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस बनाया जा रहा है, इनोग्रेट किया गया। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 22 बैम्बू क्लस्टर इनोग्रेट किए गए 9 स्टेट्स दे विच। इस दे नाल नैशनल बैम्बू मिशन का लोगो भी लॉन्च किया गया, इनोग्रेट किया गया। किहड़ी स्टेट्स दे विच बैम्बू क्लस्टर? गुजरात, MP, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटका दे विच। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CPET द्वारा स्किलिंग और टेक्निकल सपोर्ट सेंटर बनाए गए। स्किलिंग सेंटर, टेक्नोलॉजी सेंटर कह सकते हैं, बनाए गए कित्थे? भागलपुर बिहार दे विच और वाराणसी यूपी दे विच। भागलपुर बिहार दे विच और वाराणसी यूपी दे विच। भागलपुर दे विच टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बनाया गया सी। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भगवान राम के नाम के उत्ते रखा जाएगा। ठीक है, यह डोमैसटिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों होएगा और इसकी जी डेडलाइन रखी गई है दिसंबर 2021 है। इसनों कंप्लीट करने की डेडलाइन जी रखी गई है दिसंबर 2021 है। हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटका दे विच है। इसका नाम सिद्धारोदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम के उत्ते रखा गया। हुबली रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटका दे विच है, इसका नाम सिद्धारोदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम के उत्ते रखा गया। इसका नाम चेंज करके सिद्धारोदा स्वामी जी के नाम के उत्ते रखा गया। इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल वोटर अवेयरनेस सेंटर, इंडिया का पहला रीजनल वोटर अवेयरनेस सेंटर यानी कि वोटर्स नूं कह सकते हैं अवेयरनेस प्रोवाइड करवाने के लिए जयपुर राजस्थान के विच बनाया गया, जिहड़ा कि 4 स्टेट्स नूं कवर करेगा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और MP। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और MP। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जिहड़े जस्टिस ने गीता मित्तल, या कह सकते हैं फर्स्ट वूमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट गीता मित्तल द्वारा अकाता ई वकार बेसिकली एक डे केयर एंड रिक्रिएशनल सेंटर सीनियर सिटीजन के लिए इनोग्रेट किया गया सी सांबा दे विच। सांबा डिस्ट्रिक्ट दे विच इनोग्रेट किया गया सी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा पत्रिका गेट नूं जवाहर लाल नेहरू मार्ग राजस्थान दे विच जयपुर राजस्थान दे विच इनोग्रेट किया गया ताकि कल्चर और हैरीटेज नूं प्रमोट किया जा सके। इन्हां द्वारा ही 2 बुक्स भी नाल दी नाल इनोग्रेट कीतियां गईयां, संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा। संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा ऑथर्ड बाय गुलाब कोठारी। इसनूं लिखिया किस द्वारा गया सी? गुलाब कोठारी द्वारा। नेक्स्ट है एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक द्वारा इंग्लिश प्रो एप्लीकेशन लॉन्च की गई। इंग्लिश प्रो एप्लीकेशन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक द्वारा। कर्नाटका द्वारा 600 करोड़ वाटर शेड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। 600 करोड़ का वाटर शेड प्रोजेक्ट जिसनों वर्ल्ड बैंक की हैल्प के नाल बनाया जाएगा। वर्ल्ड बैंक इस 600 करोड़ के विचों 420 करोड़ प्रोवाइड कराएगा और बाकी का 180 करोड़ है जिहड़ा वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिया द्वारा हाइपरसोनिक टैक्नोलॉजी डैमोस्ट्रेशन व्हीकल HTDV शॉर्ट फॉर्म के HTDV कहा जाता है। इसनूं हाइपरसोनिक टैक्नोलॉजी डैमोस्ट्रेशन व्हीकल टेस्ट किया गया, सक्सैसफुली टेस्ट किया गया अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा दे विच। डेवलप किया गया सी इसनूं DRDO द्वारा। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 अनाउंस किया गया है कि जिहड़ा चंद्रयान 3 मिशन है उसनूं 2021 दे विच भेजा जाएगा। वोडाफोन आइडिया ने अपने आप को VI के नाम के नाल रीब्रांड किया है और इस दे लई इन्हां द्वारा लोगो भी रिलीज़ किया गया। ठीक है, VI याद रखना, वोडाफोन आइडिया को कहा जाता है? VI कहा जा रहा है। चेयरमैन ऑफ VI कौन ने? कुमार मंगलम बिरला और इसके CEO ने रविंदर ठक्कर। नेक्स्ट है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा द्वारा 400 मीटर 4 लेन फ्लाईओवर लॉन्च किया गया सी। 400 मीटर का 4 लेन फ्लाईओवर लॉन्च किया गया सी। किन्हां दे नाम दे उत्ते? VD सावरकर के नाम के उत्ते इस फ्लाईओवर का नाम रखा गया सी और जिसनूं 34 करोड़ रुपया बनाने की लागत आई सी और चीफ मिनिस्टर नगोर्थना
बेसिकली इत्थे दे जिहड़े पुराने चीफ मिनिस्टर सीगे उन्हां दे नाम तो स्कीम लॉन्च की गई सी, उस स्कीम के अंडर इसनूं बनाया गया चीफ मिनिस्टर नगोरथोना स्कीम। साउथ इंडिया फर्स्ट और इंडिया दी सैकेंड किसान रेल और साउथ इंडिया दी पहली किसान रेल आनंदपुर आंध्र प्रदेश तो न्यू दिल्ली के लिए फ्लैगड ऑफ की गई। ठीक है, किन्ना द्वारा? नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा। जी पहली देवलाली महाराष्ट्र तो दानापुर बिहार तक चलाई गई सी, देवलाली महाराष्ट्र तो दानापुर बिहार, और दूसरी आंध्र प्रदेश तो दिल्ली तक, याद रखना। फूड प्रोसैसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने बराबंकी यूपी दे विच एक प्लेस है बराबंकी, इत्थे 55 करोड़ की लागत नाल ऑर्गैनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लांट बनाया, ऑर्गैनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लांट नूं इनॉग्रेट किया। नॉर्थरोप ग्रमैन या फिर NG-14 के नाम तो कह सकते हैं, ये बेसिकली एक कंपनी है जिन्हों द्वारा स्पेसक्राफ्ट है जिहड़ा बनाया जा रहा है, स्पेसक्राफ्ट जिहड़ा भेजा जाएगा उसका नाम इंडिया की कल्पना चावला के नाम के उत्ते रखा गया। कल्पना चावला फर्स्ट वूमैन जिहड़े इंडियन वूमैन जिहड़े स्पेस च गए सी, पहले इंडियन वूमैन जिहड़े स्पेस च गए सी कल्पना चावला, इन्हां दे नाम के उत्ते उस स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा गया। नैक्सट है लखनऊ का यूपी मैट्रो स्टेशन है जिहड़ा यूपी दे विच लखनऊ मैट्रो स्टेशन है जिहड़ा वो पहली मैट्रो सर्विस बनी है इंडिया की जिसने अल्ट्रा वायलेट टैक्नोलॉजी नूं यूज़ किया है टॉकर सैनिटाइजेशन के लिए UV रेज का यूज़ किया गया है। पहली मैट्रो सर्विस लखनऊ मैट्रो सर्विस द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सैकेंड मैडिकल कॉलेज अप्रूव किया गया मोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट दे विच। बेसिकली नागालैंड का जिहड़ा दूसरा मैडिकल कॉलेज है, पहला मैडिकल कॉलेज नागालैंड की कैपिटल कोहिमा दे विच बनाया जा रहा है, दूसरा अप्रूव कर दिता गया है गवर्नमेंट द्वारा, कित्थे बनाया जाएगा? मोन डिस्ट्रिक्ट दे विच। चाइना द्वारा सक्सैसफुली लैंड किया गया रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट, एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट जिसनूं बार बार यूज़ किया जा सकेगा। लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट की हेल्प के नाल इन्होंने इसनूं टेस्ट किया है। एप्पल का पहला फ्लोटिंग स्टोर यानी कि जिहड़ा पानी के उत्ते तैरेगा, इस तरीके का स्टोर मेराइन बे सैंड रिसोर्ट सिंगापुर दे विच इनॉग्रेट किया गया। यह एप्पल का तीसरा स्टोर है सिंगापुर दे विच। 1976 दे विच एप्पल बनाई गई सी। कैलीफोर्निया USA दे विच हैडकुआटर है। टिम कुक CEO ने और इसके फाउंडर ने स्टीव जॉब्स। जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया गया, ऑनलाइन पोर्टल स्पैरो लॉन्च किया गया है। स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। बेसिकली अगर गल करिए हर साल जी रिपोर्ट भेजी जाती होंगी है एंप्लॉयज़ की या ऑफिशियल्स की, उसनूं बनाने के लिए स्पैरो पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर के विच। नैक्सट है इंपोर्टेंट मीटिंग्स ने। सब तो पहले UAE होस्ट करेगा ग्लोबल एरोस्पेस समिट। अच्छा एक न्यूज़ भी सी आप कल डिस्कस करांगे डिटेल दे विच, मंडे है कल आप कल डिस्कस करांगे कि एरोस्पेस समिट इंडिया का भी अनाउंस कर दिता गया है कि कदों हैल्ड किया जाएगा? फैबररी दे विच, नैक्सट ईयर फैबररी दे विच। ग्लोबल एरोस्पेस समिट सितंबर के लास्ट दे विच UAE होल्ड करेगा। फर्स्ट इंडिया फ्रांस और आस्ट्रेलिया की ट्राईलेटरल डायलॉग है जिहड़ा ये वर्चुअली फॉर्म ते हैल्ड किया गया। इंडिया वालों इंडिया के फॉरेन सैक्रटरी हर्षवर्धन श्रिंगला द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। इंडिया और एंगोला कंट्री की पहली जॉइंट कमीशन मीटिंग हैल्ड की गई। इंडिया वालों एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा एंगोला की कैपिटल और करंसी कमेंट बॉक्स के दसनी। वी मुरलीधरन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने एक्सटर्नल अफेयर्स के डिप्यूटी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वी मुरलीधरन इन्हों द्वारा 10th ईस्ट एशिया समिट फॉरन मिनिस्टर्स की मीटिंग हैल्ड की गई। ईस्ट एशिया समिट फॉरन मिनिस्टर्स मीटिंग जी हैल्ड की गई, पार्टिसिपेट किया गया इस वी मुरलीधरन द्वारा। एजुकेशन मिनिस्टर ने रमेश पोखरियाल निशंक इन्होंने 2 दिन का एक कॉनक्लेव हैल्ड किया, 2 दिन का कॉनक्लेव हैल्ड किया 21st सेंचुरी के लिए ऑन स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी अंडर शिक्षा पर्व के अंडर इसनूं हैल्ड किया गया 10 तो लैके 12 सितंबर तक थ्रू ऑनलाइन मीडियम, जिस दे विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा भी स्पीच प्रोवाइड की गई। नैक्सट है
SCO ਦੀ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸਮਿਟ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵਰਚੁਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। SCO ਦਾ ਹੀ ਹੈੱਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਇੰਡੀਆ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 29-30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੀ SCO ਸਟਾਰਟਅਪ ਫੋਰਮ, ਪਹਿਲੀ SCO ਯੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੌਨਕਲੇਵ ਔਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਔਨ ਸ਼ੇਅਰਡ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵੀ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ SCO ਦੀ ਹੈੱਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਿਟ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਫਥ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਲਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ SCO ਦੀ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਸੂਨ ਬੀ ਹੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕੁਆਡ ਮੀਟ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਔਰ USA। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਆਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਔਰ USA। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈਲਡ ਕਰੇਗਾ? ਇੰਡੀਆ ਹੈਲਡ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਔਰ USA ਦੇ ਨਾਲ 2+2 ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਹੈਲਡ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ G20 ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ G20 ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 12th ਮੇਕੋਂਗ ਗੰਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਮੀਟਿੰਗ। ਮੇਕੋਂਗ ਗੰਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੇ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਈਸਟ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੇ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਲ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਇਨ 2020। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫੋਰੈਸਟ ਔਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 7 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਫॉर ਬਲੂ ਸਕਾਈਜ਼, ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ ਦੁਆਰਾ। 35ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਏਸ਼ੀਆ ਔਰ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਰੀਜਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ FAO ਦੀ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਭੂਟਾਨ। ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਪਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ 36ਵੀਂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ SCO ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੋਲਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਮਿਟ ਪਹਿਲਾ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ? 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਹਨੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ 28-29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਤੀਸਰੀ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹਨੋਈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ 73ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ WHO ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਰੀਜਨ ਦੀ। WHO ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਰੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸਦੀ 73rd ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 3rd ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਦੇ ਲਈ। 3rd ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ, ਤੀਸਰਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਸ।
काफ़ी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स और रिपोर्ट्स रिलीज़ की गए ने इस वीक दे विच। सब तो पहले ईज़ रैंकिंग, ईज़ बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स 2.0। ईज़ की फुल फॉर्म है एनहेंस्ड असेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। बेसिकली बैंकर्स की एक कह सकते हैं रिपोर्ट जारी की गई, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस इंडेक्स के टॉप किया। बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया के ईज़ बैंकिंग इंडेक्स 2.0 के टॉप किया गया। सैकेंड प्लेस ते SBI रहा और थर्ड प्लेस ते ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। थर्ड प्लेस ते ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है जी। इस तो इलावा नैक्सट है नैशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने लिटरेसी रेट के उत्ते जारी की रिपोर्ट। लिटरेसी रेट दे विच सब तो अच्छी लिटरेसी रेट 96.2% केरला की रही है। केरला ने टॉप किया है फर्स्ट प्लेस के उत्ते 96.2% लिटरेसी रेट के नाल। सैकेंड प्लेस ते दिल्ली रही है 88.7% के नाल। थर्ड प्लेस ते उत्तराखंड 87.6% के नाल। फोर्थ प्लेस हिमाचल प्रदेश 86.6% और फिफ्थ प्लेस ते असम 85.9% के नाल। इस तो इलावा अगर पंजाब की गल करते हैं तो 83.7% लिटरेसी रेट रहा पंजाब का। आंध्र प्रदेश इस लिस्ट के सब तो थले सीगा 66.4% के नाल। इस तो इलावा ओवरऑल लिटरेसी रेट सीगा इंडिया का 77.7%, रूरल एरिया का सीगा 73.5% और अर्बन एरिया का 87.7%। अगर गल करिए मेल फीमेल की तो मेल लिटरेसी रेट 84.7 और फीमेल लिटरेसी रेट 70.3%। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ द्वारा ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स नूं टॉप किया गया छत्तीसगढ़ द्वारा। यानी कि ब्रॉडबैंड जी अच्छे तरीके नाल इंप्लीमेंटेशन है ब्रॉडबैंड की और उसका यूसेज है या कह सकते हैं उसकी नैटवर्क कैपेसिटी है। इन्हां चीज़ों के उत्ते इस इंडेक्स नूं रिलीज़ किया गया। तो ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स के टॉप किया है छत्तीसगढ़। नैक्सट है मोर्टैलिटी रेट। इंडिया के चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट के उत्ते एक इंडेक्स जारी किया गया जिसनों किया है यूनीसैफ, WHO, यूनाइटेड नेशनस के पॉपूलेशन डिवीजन डिपार्टमेंट ने और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर 4 डिपार्टमेंट्स द्वारा मिलकर इंडिया की मोर्टैलिटी रेट या कह सकते हैं चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट का एक इंडेक्स जारी किया गया कि 1990 तो लैके 2019 के कितना मोर्टैलिटी रेट इंक्रीज़ होया या डिक्रीज़ होया। तो मोर्टैलिटी रेट डिक्रीज़ होया यानी कि बच्चों के मरण की गिनती रिड्यूस हुई है। ठीक है, तो कितनी रिड्यूस हुई है 4.5% एनुअल रेट रिड्यूस होया अंडर 5 जिहड़े कि 5 साल तो छोटे जवाक ने। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि 1990 के 126 जवाकों की अप्रोक्सीमेटली डैथ होंदी सी और 2019 के यह गिनती घट के 39 हो गई है। अगर गल करिए नंबर ऑफ डेथ की तो 3.4 मिलियन तो 8,24,000 रह चुकी है। ठीक है जी। और सिमिलरली इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट की गल करते हैं यानी कि जोड़े बच्चे 1 साल तो छोटे होंगे ने कुछ मंथ्स के होंगे ने उन्होंने डेथ 89 तो 28 हो चुकी है। नैक्सट है DBS बैंक द्वारा वर्ल्ड बेस्ट बैंक चूज़ किया गया। DBS बैंक नूं डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दे विच वर्ल्ड बेस्ट बैंक चूज़ किया गया लगातार तीसरे साल के लिए। इसका हैडकुआटर सिंगापुर दे विच है। नैक्सट है सेंट्रल गौरमेंट द्वारा विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट है जोड़ा तमिलनाडु का विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट नूं पहला फुली डिजिटल इकनॉमी डिस्ट्रिक्ट कहा गया है स्टेट का। तमिलनाडु का विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट फुली डिजिटल इकनॉमी डिस्ट्रिक्ट बनया स्टेट का। नैक्सट है रिपोर्ट रिलीज़ की गई वैल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन की। वैल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन किस द्वारा वाइस प्रेजिडेंट M वेंकैया नायडू द्वारा। ठीक है, बनाई गई मोबाइल क्रैचिज द्वारा। इस इंडेक्स नूं टॉप किया है केरला ने टॉप किया वैल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन रैंकिंग दे विच, जिस दे विच सैकेंड प्लेस ते गोवा, थर्ड प्लेस त्रिपुरा, फोर्थ प्लेस तमिलनाडु और फिफ्थ प्लेस ते मिजोरम रहे। ठीक है, सिमिलर तरीके दे नाल यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स भी रिलीज़ किया गया। यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स इस दे विच वैल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन और इस दे विच इन्वायरमेंट की गल की गई है चाइल्ड के आसे पासे किस तरीके का इन्वायरमेंट है तो उस दे विच भी केरला ने ही टॉप किया है। सैकेंड प्लेस ते भी गोवा ही रहा है पर बाकी थर्ड 3 प्लेसिस चेंज हुई ने सिक्किम, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। फोर्थ प्लेस ते पंजाब रहा है, अपने लिए इंपोर्टेंट बनेगा याद रखना। नैक्सट है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। अगर आप गल करिए इंडिया की तो वैसे तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज़ की जाती है
तो उसे का ही पार्ट वर्ल्ड बैंक कंट्रीज वाइज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिलीज़ करता है। तो इंडिया अपने कंट्री के भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या इंडिया इसनूं कहता है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग, इस दे विच टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने। इस दे विच किहड़ी स्टेट ने टॉप किया है? आंध्र प्रदेश ने। सैकेंड प्लेस ते यूपी रहा है, थर्ड प्लेस तेलंगाना, फोर्थ प्लेस एमपी और फिफ्थ प्लेस ते झारखंड रहा है। और याद रखना है किनवा एडिशन है? फोर्थ एडिशन है इस रैंकिंग का। नैक्सट है कुछ इंपोर्टेंट स्कीम्स डिस्कस करते हैं। सब तो पहले पंजाब द्वारा किफ़ायती LED बल्ब योजना, किफ़ायती LED बल्ब योजना पंजाब द्वारा। उत्तराखंड द्वारा संस्कृत ग्राम शुरू किए गए हैं, संस्कृत ग्राम। इस दे नाल ही उत्तराखंड ने अपनी संस्कृत अकैडमी का नाम चेंज करके उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार रख दिता है। हरियाणा चीफ मिनिस्टर द्वारा व्हाट्सएप चैटबोट आपका मित्र लॉन्च किया गया। डायरैक्ट सिंगल गल कह सकते हैं कि एक सिंगल लाइन के डिस्कस करांगे। पंजाब किफ़ायती LED बल्ब योजना, उत्तराखंड द्वारा संस्कृत ग्राम, हरियाणा द्वारा आपका मित्र, मध्य प्रदेश द्वारा दीनदयाल अंत्योदय रसोई स्कीम, दीनदयाल अंत्योदय रसोई स्कीम। इस तो इलावा मध्य प्रदेश द्वारा ही 4,688 करोड़ रुपए अनाउंस किए गए हैं फार्मर्स के लिए ड्यू टू फ्लड। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने तेलंगानाकू हरित हराम लॉन्च किया। तेलंगानाकू हरित हराम किस दे नाल मिलके? CISF दे नाल मिलके, जिस दे अंडर प्लांट्स लगाए गए। नागालैंड द्वारा नागा टैली हेल्थ प्रोग्राम कोहिमा दे विच लॉन्च किया गया ताकि हैल्थ केयर सर्विसिज नूं डोर स्टैप के उत्ते प्रोवाइड किया जा सके। तमिलनाडु द्वारा 7 मैंबर पैनल बनाया गया नैशनल एजुकेशन पॉलिसी नूं इंप्लीमेंट करने के लिए। ओडिशा द्वारा रिवर क्रूजिज शुरू करने की गल की गई। टूरिज्म नूं इंक्रीज करने के लिए रिवर क्रूजिज शुरू करने की गल किहड़ी स्टेट ने की है? ओडिशा ने। असम द्वारा स्वयं एप्लीकेशन या कह सकते हैं स्वामी विवेकानंदा असम यूथ एम्पावरमेंट, स्वामी विवेकानंदा असम यूथ एम्पावरमेंट स्कीम शुरू की गई असम द्वारा ही हैरीटेज साइट्स नूं प्रोटैक्ट करने के लिए बिल पास किया गया। हैरीटेज साइट्स नूं प्रोटैक्ट करने के लिए बिल पास किया गया। नैक्सट है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट एंटी डेंगू कैंपेन शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर द्वारा बैक टू विलेज प्रोग्राम का 3rd फेज़ लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र द्वारा एग्रीकल्चर टूरिज्म नूं लॉन्च किया गया। डिसाइड किया गया कि एग्रीकल्चर टूरिज्म लॉन्च की जाएगी महाराष्ट्र द्वारा। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर द्वारा YSR संपूर्ण पोषण स्कीम लॉन्च की गई आंध्र प्रदेश द्वारा। प्रैगनेंट वूमेन्स नूं न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करवाने के लिए। लखनऊ यूपी द्वारा सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस शुरू की गई यूपी द्वारा। गुजरात द्वारा 15 मैंबर टास्क फोर्स बनाई गई किसदे लिए? नैशनल एजुकेशन पॉलिसी नूं इंप्लीमेंट करने के लिए। सिमिलर तरीके नाल तमिलनाडु ने बनाई सी 7 मैंबर और गुजरात द्वारा 15 मैंबर। ठीक है जी। नैक्सट है इंपोर्टेंट स्कीम्स दे विच नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 4 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए ने अपग्रेडेशन ऑफ सॉयल टेस्टिंग लैब्स। कश्मीर वैली दे विच सॉयल टेस्टिंग जिहड़ी लैब्स ने उन्होंने अपग्रेड करने के लिए 4 करोड़ रुपए किन्ना द्वारा अप्रूव किए गए? नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट स्कीम है जी इस वीक रिलीज़ की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इस दे अंडर फिशरीज़ की डेवलपमेंट के लिए इसनूं लॉन्च किया गया। इस दे अंडर कहा गया है कि 70 लाख टन तक की एडिशनल प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है फिशरीज़ की और 1 लाख करोड़ तक की अर्निंग नूं इंक्रीज़ करना है 2024-25 तक। इस दे लई ई गोपाला एप्लीकेशन नूं बिहार दे विच लॉन्च किया गया। प्लस फिश ब्रूड बैंक बनाया जाएगा सीतामढ़ी दे विच और एक्वैटिक डिसीज़ रैफरल लैबोरेटरी बनाई जाएगी किशनगंज दे विच। दोनों सिटीज़ कित्थे ने? बिहार दे विच। सीतामढ़ी दे विच फिश ब्रूड बैंक और किशनगंज दे विच एक्वैटिक डिसीज़ रैफरल लैबोरेटरी। फाइनैंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा डोर स्टैप बैंकिंग सर्विस शुरू की गई है पब्लिक सैक्टर बैंक्स के लिए। पब्लिक सैक्टर बैंक्स के लिए डोर स्टैप बैंकिंग सर्विस फाइनैंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा। इस दे लिए डोर स्टैप बैंकिंग नाम की एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई। नैक्सट है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने
ਪੈਟ ਡੌਗਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ਪੈਟ ਡੌਗਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। पेटीएम पेमेंट बैंक ने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम सर्विस ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम सर्विस ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ पेटीएम पेमेंट बैंक ने ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੋਇਡਾ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ। सिटी यूनियन बैंक ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ कुंभकोणम तमिलनाडु ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਵੀਡੀਓ KYC ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। बैंक ऑफ इंडिया इसने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है ताकि किस दे लई ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਅਤਨੂ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਇਸ ਦੇ MD ਨੇ। RBI ਦੁਆਰਾ ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949। SBI ਦੁਆਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਿੰਗਸ ਟੈਪ VRS 2020 ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਿੰਗਸ ਟੈਪ ਵੋਲੰਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ SBI ਦੁਆਰਾ। SBI ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਫਲ ਸਕੀਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਸੇਫ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਕੋਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ICICI ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਸਟਾਰਟਅਪ 2.0 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਈ ਸਟਾਰਟਅਪ 2.0 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ICICI ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਅਸੋਲ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਊਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। RK ਸਿੰਘ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਮ ਅਹੈਡ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟੂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪਾਰਟੀਸਿਪੈਂਟਸ ਇਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟੂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫਾਰਮਰਸ। ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ M3M ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਟੂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ MOU ਸਿਡਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ MSME ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ADB ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੀਰਟ ਰੀਜਨਲ ਰੋਡ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੀਰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ IIPA ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਰਿਸਰਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ IIPA ਕੈਂਪਸ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ A203 ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ ਲਈ। A203 ਰਾਈਫਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੁੱਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਔਰ USA ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 5G ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ USA ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਿਲ ਕੇ 5G ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। UAE ਪਹਿਲੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਦਰਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ UAE ਨੇ। ਟੋਗੋ ਪਹਿਲੀ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਲੀਪਿੰਗ ਸਿਕਨੈਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
स्लीपिंग सिकनेस ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਟੋਗੋ। ਟੋਗੋ कैपिटल लोम है, करंसी ईको ਚੱਲਦੀ है। नैक्सट है टाटा पावर। टाटा पावर ने टाटा मोटर्स के नाल एग्रीमेंट साइन किया ताकि इंडिया की लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट बनाई जा सके चिखली पुणे दे विच। चिखली पुणे महाराष्ट्र दे विच, जिसकी कैपेसिटी होएगी 6.2 मैगावाट। अदानी ग्रुप ने 74% स्टेक बाय किया है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे विच। अदानी ग्रुप ने 74% स्टेक बाय किया है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे विच। WhatsApp द्वारा साइबर सिक्योरिटी थिंक टैंक साइबर पीस फाउंडेशन के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया। साइबर पीस फाउंडेशन न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है। विनीत कुमार इसके हैड ने। किस दे लिए एग्रीमेंट साइन किया? अवेयरनेस फैलाई जा सके साइबर सिक्योरिटी के लिए। पहले फेज़ के 15,000 स्टूडेंट्स को अवेयरनेस प्रोवाइड करवाई जाएगी 2020 तक। किहड़ी 5 प्लेसिस तो? दिल्ली, MP, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। दिल्ली, MP, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र दे विच। नैक्सट है कुछ इंपोर्टेंट बुक्स ने और डिस्कस कर लेने। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन्हों द्वारा द लिटल बुक ऑफ ग्रीन नजीज इसनों लॉन्च किया गया सी स्टूडेंट्स नूं, बेसिकली स्टूडेंट्स नूं एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैबिट्स प्रोवाइड करवाने के लिए। UNEP का हैडकुआटर नायरोबी केनिया के विच है, ये याद रखना है। और दिया मिर्जा नूं इसके एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी 2022 तक के लिए, ये भी याद। चैनिंग तातुम द्वारा 5 बुक्स चैनिंग तातुम द्वारा एक बुक रिलीज़ की गई है, द वन एंड ओनली स्पार्केला। चैनिंग तातुम द्वारा द वन एंड ओनली स्पार्केला। नैक्सट है इंपोर्टेंट अवार्ड्स। सब तो पहले NTPC द्वारा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसीएशन चाणक्य नैशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीतियां गई ने। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसीएशन की चाणक्य नैशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 किसने जीतियां ने? NTPC। बेसिकली NTPC की वलूर तमिलनाडु की टीम ने इस चैंपीयनशिप नूं जित्तिया सी। ठीक है। नैक्सट है केरला के हैल्थ मिनिस्टर ने के शैलजा। काफ़ी इंपोर्टेंट नाम है, पहले भी डिस्कस किया। क्यों डिस्कस किया? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस द्वारा इन्हों ऑनर किया गया सी। हुण इन्हों टॉप थिंकर 2020 की लिस्ट के शामिल किया गया, जिसनों जारी किया है ब्रिटिश मैगजीन प्रोस्पैक्ट द्वारा। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जकिंडा एंडरसन भी इस लिस्ट के शामिल ने। USA के प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हों द्वारा विलमिंगटन सिटी नूं वर्ल्ड वॉर 2 हैरीटेज सिटी का नाम दिता है। वर्ल्ड वॉर 2 हैरीटेज सिटी डिक्लेयर किया गया है। कदों? 75th एनिवर्सरी सी वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने की। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI द्वारा सदीकपुर सिनौली जो कि उत्तर प्रदेश के बगपत डिस्ट्रिक्ट के विच है, इसनूं नैशनल इंपोर्टेंस का प्लेस दर्जा दिता गया। नैक्सट है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह द्वारा इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2019 दिता गया डेविड एटनबोरो नूं। 2018 के विच यह प्राइज़ सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट नूं दिता गया सी और प्राइज़ मनी है 25 लाख रुपए। USA के प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नूं नोबल पीस प्राइज़ 2021 के लिए नॉमीनेट किया गया। नोबल पीस प्राइज़ 2021 के लिए नॉमीनेट किया गया USA के प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नूं। प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद ने RPF के 3 ऑफिसर्स नूं जीवन रक्षा मैडल्स प्रोवाइड किए हैं। नाम इंपोर्टेंट बनेगा लेट जगहीर सिंह नूं, जो कि नॉर्दर्न रेलवे के कॉन्स्टेबल ने। इन्होंने सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, शिवचरण सिंह और मुकेश कुमार मीना नूं उत्तम जीवन रक्षा पदक और सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। डिफरेंस याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज। सब तो पहले 5 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, या कह सकते हैं डेथ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा। इन्हों द्वारा नोबल पीस प्राइज़ जीता गया 1979 के। 5 सितंबर को ही नैशनल टीचर्स डे, या कह सकते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडिया के पहले वाइस प्रेजिडेंट और दूसरे प्रेजिडेंट डॉक्टर S राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। इन्हों द्वारा बुक लिखी गई सी, इंपोर्टेंट है, द फिलोसफी ऑफ रविंद्र नाथ टैगोर इन 1917।
द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन 1970। 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਫॉर ਬਲੂ ਸਕਾਈਜ਼, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਫॉर ਬਲੂ ਸਕਾਈਜ਼ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਡੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ। ਇਸ ਨੂੰ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰੇਗਾ 2060 ਤੱਕ। ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਚੀਵ ਕਰੇਗਾ? 2060 ਤੱਕ। ਅਸਮ ਦੁਆਰਾ 5th ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਜੂਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ। ਰਿਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਮਾਜੂਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ 5ਵਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਿਵਸ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੁਆਰਾ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਿਵਸ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੁਆਰਾ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਅਟੈਕ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਅਟੈਕ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸੁਸਾਈਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਡੇ, ਵਰਲਡ ਸੁਸਾਈਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। अपॉइंटमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट्स ने। सब तो पहले अंबैसडर्स, ब्रांड अंबैसडर्स की गल करिए तो बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, आयुष्मान आएगा थे आयुष्मान खुराना ब्रांड इंश्योरेंस दे, ठीक है जी। इस तो इलावा गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स स्पोर्ट दे ब्रांड अंबैसडर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना। ड्वेन ब्रेवो ब्रांड अंबैसडर शॉपटॉप जो कि एक स्पोर्ट्स बुक ब्रांड है, ठीक है जी। इस तो इलावा ईशा अंबानी और आकाश अंबानी इन्हों फॉर्चून मैगजीन की 40 अंडर 40 लिस्ट के शामिल किया गया सी। 40 अंडर 40 लिस्ट के शामिल किया गया सी ईशा अंबानी और आकाश अंबानी। उत्पल कुमार सिंह नूं सैक्रटरी अपॉइंट किया गया लोक सभा के सैक्रटरी अपॉइंट किया गया उत्पल कुमार सिंह नूं। लीसा कैंपबेल फर्स्ट वूमन बने ने जो कैनेडियन स्पेस एजेंसी नूं हैड करनगे। कैनेडियन स्पेस एजेंसी नूं हैड करने वाले फर्स्ट वूमन बने ने लीसा कैंपबेल। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस RF नैरीमैन इन्हां नूं चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसिज कमेटी का। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसिज कमेटी के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए ने जस्टिस RF। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक कमेटी बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी टू असिस्ट द असैसमेंट ऑफ रिलीफ टू बैंक बोरोअर्स नूं जिहड़ी रिलीफ दी गई सी उस दे रिलेटेड डिस्कस करने के लिए कमेटी बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर कैग राजीव महरिषि की चेयरमैनशिप के अंडर। 3 मैंबर कमेटी यह राजीव महरिषि की चेयरमैनशिप के अंडर। नैक्सट है परेश रावल जिन्होंने 2014 के पद्मश्री दिता गया सी। इन्होंने चेयरमैन अपॉइंट किया गया नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बाय प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद। नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959 के बनाया गया सी। न्यू दिल्ली के हैडक्वार्टर है और इसके डायरैक्टर ने सुरेश शर्मा। अनिल जैन नूं प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया ऑल इंडिया टेनिस एसोसीएशन का। ऑल इंडिया टेनिस एसोसीएशन के प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं अनिल जैन। विंकेश गुलाटी 35th प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं फाडा दे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसीएशन फेडरेशन फाडा दे 35वें प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं विंकेश गुलाटी। छत्रपति शिवाजी इन्हों सैक्रटरी अपॉइंट किया गया MSME मिनिस्ट्री के सैक्रटरी अपॉइंट किए गए हैं छत्रपति शिवाजी। बेसिकली जोड़े MSME मिनिस्ट्री के सैक्रटरी होंगे ने यह बेसिकली इंडिया के सब तो बड़े स्टैटिस्टिशियन मन्ने जाते हैं, इस करके इन्हों का नाम इंपोर्टेंट बनता है। कविता लखानी इन्हों विकी का प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया वूमेन्स इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं कविता लखानी। रैंडी स्मॉलवुड नूं चेयरमैन अपॉइंट किया गया वर्ल्ड गोल्ड काउंसल के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं रैंडी स्मॉलवुड। लंडन UK के इसका हैडक्वार्टर है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं इंडिया टू इटली। नीना मल्होत्रा। एंबेसडर ऑफ इंडिया टू क्रोशिया राजकुमार श्रीवास्तव। क्रोशिया कैपिटल जैग्रेब है, करेंसी कूना चलती है।
आर मसाकुई एम्बेसडर टू जमाइका, आर मसाकुई एम्बेसडर टू जमाइका। जमाइका कैपिटल किंगस्टन है, करेंसी डॉलर चलती है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया द्वारा क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन लीसा सिंह नूं की अपॉइंट किया गया, एंबेसडर्स अपॉइंट किया गया है ताकि इंडिया के लिए ट्रेड एंबेसडर्स अपॉइंट किए गए हैं ताकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस इंप्रूव किए जा सकन। ठीक है जी। वैटरन तेलुगू एक्टर जयप्रकाश रेड्डी जी की डेथ हो गई है। ये कित्थों बिलोंग करते सी? आंध्र प्रदेश तो बिलोंग करते सी। फादर ऑफ इंडिया रेडियो एस्ट्रोनॉमी के फादर गोविंद स्वरूप की भी डेथ हो गई है। इन्हों द्वारा पद्म श्री दिता गया 1973 के विच और शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिता गया 1972 के विच। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर गोविंद स्वरूप शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किहड़े ईयर के विच दिता गया 1972 के विच। कैनीची मयुकावा ये प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं सियाम के। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल एसोसीएशन मैन्युफैक्चरर्स के प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं कैनीची मयुकावा। केशव नंदा भारती जो कि फेमस से अपने प्रेम्बल के उत्ते किए केस के लिए, इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई है। इन्हों द्वारा 1973 के विच केस फाइल किया गया सी कि प्रेम्बल है जिहड़ा इसनूं अमेंड किया जा सकता है या नहीं, इसनूं अमेंड किया जा सकता है। एंड दे जजमेंट पास की गई और उसके अनुसार अमेंडमेंट भी की गई प्रेम्बल नूं 1976 के विच। प्रेम्बल नूं कितनी बार अमेंड किया गया? एक बार अमेंड किया गया। कदों किया गया? 1976 के विच, याद रखना है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज़। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू द्वारा बाइचिंग बुटिया फुटबॉल स्कूल एप्लीकेशन एनजोगो नूं लॉन्च किया गया। फ्रांस के पेरे गैसले जो कि अल्फा तोरी टीम तो बिलोंग करते हैं, इन्हों द्वारा 2020 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता गया। 2020 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता गया फ्रांस के पेरिस पीरे गैली द्वारा। इयान बेल इंग्लैंड तो बिलोंग करते हैं, इन्होंने क्रिकेट तो रिटायरमेंट लीती है। इयान बेल क्रिकेटर इंग्लैंड तो बिलोंग करते हैं, रिटायरमेंट लेती है। वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु ये पार्टिसिपेट करने थॉमस कप और ऊबर कप, यानी कि ऊबर कप के पार्टिसिपेट करने। थॉमस कप मैन के लिए होंगे, ऊबर कप वूमेन के लिए होंगे। दोनों किस नाल रिलेटेड ने? बैडमिंटन के नाल रिलेटेड ने। और कित्थे हेल्ड किए जाएंगे? डेनमार्क के विच। डेनमार्क कैपिटल कोपनहेगन, करेंसी क्रोन चलती है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नूर मोहम्मद नूं 5 साल के लिए बैन किया है। अफगानिस्तान तो बिलोंग करते हैं नूर मोहम्मद, क्रिकेट तो बिलोंग करते हैं और इन्हों 5 साल के लिए बैन किया गया। मार्शल आर्टिस्ट पूनम खत्री जिन्होंने सिल्वर मैडल जितया सी वूशू वर्ल्ड चैंपीयनशिप के इन्हों के सिल्वर मैडल नूं गोल्ड मैडल के प्रमोट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने गोल्ड मैडल जितया सी उन्होंने डोपिंग टैसट के फेल हो गए ने वो, इस करके गोल्ड इन्हों का सिल्वर मैडल गोल्ड के प्रमोट किया जा रहा है। पूनम खत्री हरियाणा तो बिलोंग करते हैं, याद रखना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दूसरे ऐसे फुटबॉलर बन चुके हैं और पहले यूरोपियन फुटबॉलर बन चुके हैं जिन्होंने 100 इंटरनेशनल गोल्स किए हैं। अगर गल करिए पहले नंबर पर अली देई ने जिन्होंने 109 इंटरनेशनल गोल्स किए हुए हैं, 109 इंटरनेशनल गोल्स किए हुए हैं। अज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।